Hello everyone, welcome in geography class. Well, today we are going to learn the next chapter, chapter number 5, natural vegetation and wildlife. In this part of the chapter, we are going to learn about the vegetation of India and Brazil. Which type of vegetation or which type of trees or forest are available in India and forest. We are going to learn from this chapter. Then we are going to learn about the animals, that means wildlife. Then about the India and Brazil. Okay, then now listen carefully. Observe the image shown in the figure 5.1 and discuss the basis of the following points. Then now listen carefully. The first question is there. Can you tell the name of the plants trees shows in the image? Now we are showing some images here. Here figure 5.1 is there, flora and fauna of Brazil. तो फ्लोरा और फाउना ये ब्राज़ील का यहाँ पे दिया गया है. यहाँ पे हमें कुछ इमेजेस वहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू टेल द नेम ऑफ प्लांट्स ट्रीज शोन इन द इमेज. देन वी आर सीइंग some plants, some images of plants and trees are here. Then we are going to discuss about it. The first plant is there, which is the cactus, which we found in desert area. Cactus like plant is here. Then the second plant is there, that is Brazilian pepper tree. What is Brazilian pepper tree is here. Then the next image is here, which is द टीक ट्री इन ब्राज़ील. तो ये ट्रीज़ के नाम हमने यहाँ पे जान लिए हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर, वेयर हैव यू सीन दिस प्लांट्स बिफोर. तो आपको इससे पहले ये प्लांट्स कहाँ पे दिखाई दिए. तो हमारे इंडिया के अंदर जो डेजर्ट पार्ट है, राजस्थान वाला पार्ट है, वहाँ पे इस तरह के प्लांट दिखाई देते हैं. देन ये जो मतलब फॉरेस्ट एरिया है, एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे भी इंडिया के अंदर इस तरह के कुछ प्लांट्स हमें दिखाई देते हैं. Okay, next name the fauna show in the image. Fauna, that means animal which shows in the image. First image is about the bird. Which type of bird is there, do you know? Okay, the bird, the name of this bird is Rufous billed thrush bird. This bird's name is Rufous billed thrush bird. Okay, the next picture, that is Brazilian jaguar. It is a Brazilian jaguar. And the next picture we are seeing here, that is the anaconda. Now the next question is there, that is where you have seen them before. Then we have seen these animals in India also. Okay, then you might have recognized the species shown above the discuss about them, because there is similar between them and many Indian species, but these species are found in Brazil. तो मतलब हमने ये सारे स्पीसीज जो है ऊपर दिखाए गए इमेजेस में उसे समझ लिया है. इंडिया के अंदर भी ऐसी कुछ मतलब फ्लोरा एंड फाउना हमें दिखाई देता है, कुछ वेजिटेशन और कुछ एनिमल हमें दिखाई देते हैं. लुक फॉर देयर नेम्स. नाउ वी विल स्टडी about the variety of flora found in Brazil. तो हम यहाँ पे जो ब्राज़ील में दिखने वाले जो फ्लोरा है, जिसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं. इन फिगर 5.2 रेनफॉल फ्लोरा एंड फाउना ऑफ ब्राज़ील has been shown in the cross profile along with the physiography. The change occurring in the above elements while going from the north to south is clearly seen here. Discuss about these in the class and write the note about it. Then we are seeing the next figure is here, that is 5.2 figure, that is the physiography, natural vegetation and wildlife we are seeing here. Then we are starting discussing about this figure from right side. Here at the right side we are seeing the sea part, it is Atlantic Ocean. Then coastal plain area and the highland we are seeing here, Brazilian highlands. That means it is the escarpment, great escarpment of
Brazil. The height where we are seeing here, that is 1200 millimeter, and the temperature is 27 degree Celsius, where we can found the reptiles and grassland animals. Then the next part we are seeing here, the Parana Basin is there, and the grassland animals we can found here. The height of this part is 1500 millimeter and the temperature is 21 degree Celsius, where we are seeing the deciduous forest, and in the highland we can see the temperate forest. The next part that is reptile, then arboreal and aquatic animals. The height is there, that is 2000 millimeter, temperature is 28 degrees Celsius, where we can find the equatorial forest. And the next part where we can find the various type of apes, that is tropical forest. The height is there, that is 1600 millimeter and temperature is 21 degree Celsius. Such a type of the explanation of this figure is there. Now we are going to learn about the geographical explanation. Then now listen carefully. Brazil vegetation. In Brazil, rainfall varies due to physiography. In most part of the equatorial region, it rain throughout the year. तो ब्राज़ील के अंदर जो मतलब रेनफॉल है वो अलग अलग तरह की वहाँ पे है, अलग अलग तरह के जो फिजियोग्राफी है वहाँ पे अलग अलग तरह की रेनफॉल वहाँ पे होती है, और बहुत से सारे पार्ट में, यानी इक्वेटोरियल जो रीजन है वहाँ पे जनरली पूरे साल भर में रेनफॉल होती रहती है. एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर, द नंबर ऑफ रेनी डेज एज वेल एज अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिड्यूस. अगर कोई एक इंसान इक्वेटर से दूर जाए तो उन्हें अलग अलग तरह के रेनी डेज वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और जो रेनफॉल है वो धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देगी. दिस इफेक्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द वेजिटेशन टू. और इसी तरह से जो वेजिटेशन की लाइफ साइकिल है वो भी हमें वहाँ पे दिखाई देंगी. देन एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया वेयर द रेन थ्रू आउट द ईयर. तो जहाँ पे पूरे साल भर में बारिश होती है वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेंगे. द रीजन्स विच रिसीव रेनफॉल ओनली ड्यूरिंग सर्टन सीजन्स, द डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन रिड्यूस. तो ऐसा रीज़न जहाँ पे जो रेनफॉल है वो सिर्फ कभी कभार या सीज़न में हमें दिखाई देती है, वहाँ पे जो वेजिटेशन का डेंसिटी है वो कम दिखाई देगा, कम वेजिटेशन, कम फॉरेस्ट वहाँ पे दिखाई देंगे. इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट वेरियस टाइप ऑफ ग्रासेस, शॉर्ट shrubs, थॉर्नी वेजिटेशन एक्सेट्रा आर फाउंड. तो वहाँ पे फॉरेस्ट के अलावा हम क्या देख सकते हैं, तो अलग अलग तरह के मतलब ग्रासेस देख सकते हैं, छोटे छोटे श्रब्स वहाँ पे देख सकते हैं, थॉर्नी वेजिटेशन वहाँ पे हम देख सकते हैं. ब्राज़ील हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पेसीज इन द वर्ल्ड. तो ब्राज़ील के अंदर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन के, ट्रीज़ के, प्लांट्स के स्पेसीज हमें दिखाई देते हैं. दिस इंक्लूड्स एवरग्रीन वेजिटेशन, सेमी एवरग्रीन, अराइड एक्सेट्रा. तो वहाँ पे एवरग्रीन वेजिटेशन देख सकते हैं, सेमी एवरग्रीन देख सकते हैं और अराइड वेजिटेशन भी देख सकते हैं. वन फाइन ट्री लाइक पाउ ब्रासिल, देन रबर, देन मोहगनी, रोजवुड एंड वैरायटी ऑफ ऑर्चिड्स. तो वहाँ पे किस तरह के ट्रीज हम देख सकते हैं, पाउ ब्रासिल्स, रबर, मोहगनी, रोजवुड और ऑर्चिड्स की वैरायटी हम वहाँ पे देख सकते हैं. बिकॉज ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ रिलीज इन द एनवायरनमेंट. तो ब्राज़ील के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे रेन फॉरेस्ट हमें दिखाई देते हैं, और ये जो रेन फॉरेस्ट है ब्राज़ील के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. यहाँ की ट्रीज जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को वहाँ पे रिलीज़ करते हैं. दिस हेल्प्स टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल वहाँ पे कम होती है. देयरफॉर दिस रेन फॉरेस्ट आर राइटली कॉल द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड.
और जिसकी वजह से इन रेन फॉरेस्ट की वजह से उन्हें इन फॉरेस्ट को वहाँ पे लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज़ देयर, दैट इज़ इंडिया वेजिटेशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द basis of figure 5.3. First of all, we are going to learn about the figure 5.3. Here we are seeing the major forest type in India, major forest type in India. Then here the indexed, which shows the dark green color for evergreen forest, then the faint green color which is deciduous forest, then the next color shows thorny shrubs, and then the faint color which is showing Himalayan forest, and the next color which shows the coastal forest. Okay, this is the map of India which is showing the major forest type. Now the questions are here. The first question is there, which forests are found in the western snow-capped regions? Then by the study of this map we can say that the answer of this question is like this: evergreen forests are found in the western coastal region. तो वेस्टर्न कोस्टल रीजन जो है वहाँ पे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई दे रहे हैं, जो ये मतलब डार्क ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, जो वेस्टर्न पार्ट में हमें दिखाई दे रहा है, वेस्टर्न कोस्टल रीजन के पार्ट में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच कोस्ट डू यू मेनली फाइंड इन कोस्टल वेजिटेशन? तो कोस्टल वेजिटेशन हम वहाँ पे कहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें ये मतलब जो ब्लू कलर है वो हमें दिखा रहा है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ लाइक दैट, द कोस्टल वेजिटेशन इज़ मेनली फाउंड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट के पार्ट में हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ which type of forest occupy maximum area in India and why? Then we can tell the answer of this question like this: deciduous type of vegetation is characterized by trees that shed their leaves during dry summer season. Then shedding leaves decreases the rate of the evaporation and it helps trees to cover water and energy. Then deciduous type of vegetation is found in the area receive rainfall between 1000 mm and 2000 mm. Then we can say that in most of the India the amount of annual average rainfall is between 1000 mm to 2000 mm. Therefore the deciduous forest of vegetation occupies most of the India. Now the next question is there, that is, where do you find thorny and shrub vegetation and why? The answer of this question, we can say that thorny and shrub vegetation is found in the state of Rajasthan and the central part of peninsula. Then most of the region of Rajasthan and the central part of the peninsula is included in a rain shadow area. The annual average rainfall received by this region is less than 500 mm. Thorny and shrubs like vegetation is mainly grown in the area experiencing hot summers and receive less than 500 mm of rainfall. Therefore, thorny and shrub vegetation is found in the Rajasthan and peninsula part. Okay, now the next part is geographical explanation. Following types of forests are found in the India in region which receive more than 2000 mm of rainfall on the average. Along with abundant sunlight, evergreen forests are found. तो evergreen forest कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जहाँ पे rainfall 2000 mm से ज़्यादा है। उसके बाद the leaves of the trees in these forests are broad and green. तो यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं उसमें जो ट्रीज़ हैं उनके लीव्स कैसे होते हैं? बहुत ही ब्रॉड और जो बहुत ही ग्रीन ऐसे होते हैं। उसके बाद द ट्रीज़ हैव द हार्ड वुड,
तो जो ट्रीज़ होते हैं उनके जो वुड हैं, उनकी जो लकड़ी है बहुत ही हार्ड होती है, हेवी एंड ड्यूरेबल। तो हेवी भी होती है और ड्यूरेबल ऐसी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल महोगनी, रोजवुड, रबर, ये जो ट्रीज़ है उनकी लीव्स और जो मतलब वुड है वो इस तरह से हमें दिखाई देगा। ऑल्सो देर आर वेरियस टाइप ऑफ क्रीपर्स फाउंड हियर। तो बहुत से सारे क्रीपर्स जिसे हम वैली कहते हैं वो भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। देन हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। इन रीजन्स रिसीव रेनफॉल बिटवीन 10,000 मिलीमीटर टू 2,000 मिलीमीटर। इन इंडिया डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड। डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे देखने को मिलती है इंडिया में? जहाँ पे 1000 मिलीमीटर से लेकर 2000 मिलीमीटर की रेनफॉल होती है वहाँ पे। इन ड्राई सीजन ट्रीज शेड देयर लीव्स सो दैट वाटर इज़ नॉट लॉस्ट ड्यू टू इवेपोरेशन। तो यहाँ पे जो ट्रीज़ है वो ड्राई सीज़न में, समर के सीज़न में अपने लीव्स को फॉल कर देते हैं, गिरा देते हैं। लीव्स ना होने की वजह से जो मतलब वाटर का इवेपोरेशन है वो कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल teak, bamboo and banyan, पीपल एक्सेट्रा ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो इस तरह के ट्रीज, टीक, उसके बाद बाम्बू, बनियान, पीपल, इस तरह के ट्रीज वहाँ पे देखने को मिलते हैं। रीजन्स दैट रिसीव लेस दैन 500 मिलीमीटर रेनफॉल एंड एक्सपीरियंस ड्राई समर फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन इंडिया। थॉर्नी एंड श्रब्स टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड। तो थॉर्नी और श्रब टाइप वेजिटेशन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? जहाँ पे इंडिया में 500 मिलीमीटर से कम की रेनफॉल होती है और समर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, लॉन्ग पीरियड के होते हैं। ऐसे एरिया में हमें थॉर्नी और श्रब टाइप वाले वेजिटेशन दिखाई देते हैं। द लीव्स आर स्मॉल इन साइज। फॉर एग्जाम्पल कैटेच्यू, देन acacia, then khezri and varieties of cactus like aloe vera and agave। तो इस तरह के जो मतलब वेजिटेशन है वो हमें दिखाई देता है जिसके जो लीव्स है वो छोटे होते हैं। और उसके एग्जांपल हम बता सकते हैं कैटेच्यू, उसके बाद कैकेसिया, उसके बाद खेजरी, उसके बाद कैक्टस की अलग अलग वैरायटीज़ हम वहाँ पे देख सकते हैं, एलोवेरा और एगवे। इस तरह के जो वेजिटेशन है वो हम ऐसे रीजन में देख सकते हैं। इन स्वैम्पी एरिया estuaries and lagoons near coastal area having saline soils and moist climate, coastal type of vegetation is found। तो coastal type vegetation, moist मतलब जहाँ पे कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन हम कहाँ पे देख सकते हैं? जहाँ पे मॉइस्ट है या सलाइन सॉइल हमें देखने को मिलती है। जो स्वैम्पी एरिया है, जो लगुन्स वाला एरिया है, बैक वाटर जहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ऐसे एरिया में इस तरह का वेजिटेशन हम कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन देख सकते हैं। तो इसके नाम से हम कह सकते हैं कि जो भी कोस्टल पार्ट है वहाँ पे ये जो वेजिटेशन है ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है। दे आर कॉल्ड मैंग्रोव्स और सुंदरबन इन इंडिया। तो उन्हें मैंग्रोव्स और सुंदरबन इंडिया में कहा जाता है। ये बंगाल वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये बे ऑफ बंगाल में अंदर वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो मतलब डेल्टा रीजन है गंगा का, यहाँ पे सुंदरबन वाला एरिया हमें दिखाई देता है और मैंग्रोव फॉरेस्ट वहाँ पे दिखाई देते हैं। मतलब वहाँ की जो मिट्टी है उसमें सॉल्ट, खारापन ज़्यादा होता है, ऐसा एरिया। उसके बाद द वुड ऑफ दिस ट्रीज इज़ ऑयली, लाइट एंड ड्यूरेबल। तो ये जो ट्रीज़ होते हैं वहाँ के, उनके जो मतलब लकड़ियाँ होती है वो ऑयली होती है, लाइट वेट में होती है, ड्यूरेबल वहाँ पे होती है। उसके बाद इंडियन हिमालयाज 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड के हिसाब से 3 टाइप के जो फॉरेस्ट है वो हिमालय में हमें देखने को मिलते हैं। इन एरियाज लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड, सबसे ऊपर वाले एल्टीट्यूड में सीजनली फ्लोरिंग ट्रीज आर फाउंड। तो फ्लावर वाले ट्रीज हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं। इन रीजन विथ मीडियम एल्टीट्यूड में कॉनिफरस ट्रीज लाइक पाइन, उसके बाद देवदार, फर एंड द फुटहिल मिक्स्ड फॉरेस्ट आर फाउंड।
फुटिल में मिक्स्ड फॉरेस्ट हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो मिडल एरिया है वहाँ पे किस तरह के ट्रीज़ हमें देखने को मिलते हैं, वो कॉनिफरस ट्रीज़ होते हैं। कॉनिफरस मतलब द ट्रीज़ विच लीव्स आर लाइक अ नीडल शेप। तो नीडल शेप वाले जो लीव्स वाले ट्रीज़ हैं उन्हें कॉनिफरस ट्रीज़ वहाँ पे कहा जाता है, जैसे कि पाइन, देवदार, फर, ये सारे ट्रीज़। और जो फुटिल वाला एरिया है वहाँ पे मिक्स फॉरेस्ट हमें दिखाई देते हैं। दिस इंक्लूड बोथ कॉनिफरस एंड डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो वहाँ पे हमें कॉनिफरस और डेसिडियस दोनों टाइप के फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। हियर द प्रोपोर्शन ऑफ साल ट्रीज इज़ हायर। तो जहाँ पे हमें साल ट्रीज़ का प्रोपोर्शन या साल ट्रीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। तो ऐसा ये एरिया हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट पार्ट इज़ ब्राज़ीलियन वाइल्ड लाइफ विच वी विल बी लर्न इन द नेक्स्ट lecture. Okay, bye.